What was the comment the Malaysian president gave it to you? I'm the chairman of management board from last 3 years. That is a Rawat industrial estate. This is the only industrial estate in Pakistan developed and running by the private sector. आजकल के बच्चे रगड़े से डरते हैं, वो समझते हैं रगड़ा देने से वो कमजोर पड़ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलाना, मैन्युफैक्चरिंग करना किसी जहाज से कम नहीं है। एक फैक्ट्री वाले को तकरीबन 30 से 40 अदारों से निबड़ना पड़ता है। Define yourself. Do you think that you are an entrepreneur? You are a family person, or how do you define yourself? Pindi Chamber always go with the right people. उसमें कोई nepotism नहीं चलता, कोई आपका पैसा नहीं चलता, कोई आपकी और सिफारिश नहीं चलती। रवात इंडस्ट्रियल स्टेट का चेयरमैन मानता है कि पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? नहीं है। It's not there. What is happiness to you? I am a very ordinary person. ठीक है ना? I was a backbencher in my school. Oh. I was not a A grade A plus student. आजकल की बीमारी है ना ये A grade A plus O level A level. I'm a simple metric. हमने किया अपने graduation masters की. तो I am a very average, shy and very मतलब कम बोलने वाला बच्चा. What is success to Nadeem? मैं आज शाम को जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो मैं 10 दफा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे सेहत दी, तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे अच्छी औलाद दी, मुझे माँ बाप दिए। इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि मेरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन आपने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया अल्लाह का, दिन में 2 दफा 3 दफा सारी दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी। In my Coffee with CEO session today, I'm having a very prominent businessman from Rawalpindi and Islamabad chapter. So please welcome Chaudhry Nadeem Rauf, who is the CEO and Managing Director for Arco International and also the Director in Arco Group. He is also the first elected secretary for Rawalpindi Gymkhana. Also, he is the chairman for Rawat Industrial Estate and is ex-president for Rawalpindi Chamber of Commerce. How are you? Thank you very much, Nazia. Thank you for having me here in a beautiful environment, and it's my honor to be in CEO Club. Thank you so much. So many hats with you, isn't it? Alhamdulillah, ji. But I can only say that Allah is very kind to me, and this is how my journey was. And I'm the ex-president. My take is that I'm the former president because of Rawalpindi Chamber, because Rawalpindi Chamber is one of the chambers of Pakistan. If I talk about chambers, because there are more than 100 chambers in Pakistan, so this is the third largest chamber, and Alhamdulillah, the most vibrant one. So it is. So it is. I'm fortunate enough to lead that chamber as a president in 2021. So this is, I think, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उसमें. But when as you started with Rawalpindi, now I'll be taking the lead. So let's talk about your tenure. Yes. Sri Lanka लेके गए, जी बिल्कुल. हाँ, Thailand लेके गए, and as far as I know, both of the countries were the tough to catch. Exactly. Why? Because of the Indian prominence. Yes. Because of that, the pharmaceuticals were not that in that time, and also that you got so many MOU signed. Yes or no? Exactly. It's a tough call because if you talk about the first the delegation we took is to Sri Lanka. It's around 170 people of businessmen, specifically from the region of Rawalpindi and Islamabad. And fortunately, the Prime Minister of Sri Lanka at that time was the chief guest of our event, and the Trade Minister and all the high-ups. So it is not that easy, as you already said, that it is a more Indian-dominant country, because India is just very near to Sri Lanka. But Alhamdulillah, it's a challenge for us. They like Pakistanis, they like Pakistani people, because the role of Pakistan in Sri Lanka in the past is very much prominent. तो वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की प्रेजेंस हो, क्योंकि बिकॉज श्रीलंका इज अ इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी. उनका जितना भी सामान है वो ज्यादा इंपोर्ट होता है, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम मेनी इयर्स कि जी पाकिस्तान से कोई अच्छा बड़ा डेलीगेशन आए जिनके साथ हम बैठ के MOU साइन करें और उनके साथ ट्रेड की जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह
broke a lot of deals there. हमारे साथ काफी अच्छे prominent बड़े figures थे पाकिस्तान से जो गए थे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गई थी, स्टेट ओन्ड कंपनीज भी साथ थी, जहाँ पे हमने MOU साइन किए स्पेसिफिकली इन द सेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है श्रीलंका में, तो वो दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेबरिंग कंट्रीज. सो वी साइन द MOUs देयर, बायलैटरल ट्रेड के काफी सारी बातें वहाँ पे हुई. तो इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल इवेंट. और स्पेशली आप देखें जब हेड ऑफ स्टेट एक इवेंट में आता है तो उसकी हाइप वैसी क्रिएट हुई थी. आई टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो उन दिनों जब ये सारा हमने इवेंट किया, क्योंकि माय टेन्योर इज एक्चुअली द पोस्ट कोविड टेन्योर, एवरीथिंग इज ओपनिंग अप, ट्रैवलिंग ओपन हो रही थी, जो पिछले 3-4 साल का बैकलॉग था वो निकल रहा था. तो एक बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई. इंडियन जो उनका वहां सेगमेंट था एंटी पाकिस्तान, और उनके बहुत परेशान थे कि यार इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान से आ गया है और वो ट्रेड डील्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे फील वेरी इनसिक्योर. तो दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह द कैच ऑफ दैट. Hey Nadeem, what was the comment the Malaysian president gave it to you? Razia, that was the highlight of my life. That was that event. The Malaysian president, Prime Minister at that time, Dr. Mahathir Mohamad, he's a legend also. He came to our event. I was heading that event as a chairman in Malaysia, Kuala Lumpur, where we took 450 people as a business delegates. He said that this is the first time I'm in a non-Malaysian chamber event in Malaysia. So that is actually part of the history of our chamber. So we are still carrying it. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी देखता हूँ अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूँ काम है कि I was the chairman at that time and heading that event. So that is, you can say, highlight of my life. Oh, but सुना है नेपोटिज्म ने आपको फायदा देने की बजाय रावलपिंडी चैम्बर ने आपको उतना ही रगड़ा लगाया कि इसको मजीद टफ टाइम दिया जाए so that he will be capable for the seat. Yes or no? Yes. बात यह है कि अब हम पाकिस्तान की बात करें, nepotism is a plus point as compared to the negative. But जब पिंडी चैम्बर की बात होती है तो that is a negative point because पिंडी चैम्बर always go with the right people. उसमें कोई nepotism नहीं चलता, कोई आपका पैसा नहीं चलता, कोई आपकी और सिफारिश नहीं चलती. बात यह है कि in 2008, alhamdulillah, my father was the president of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. So I am his son. तो वो उसमें मुझे अच्छा उन्होंने रगड़ा इसी पॉइंट ऑफ से दिया कि लोग ये ना कहें कि इसका बाप चूंकि प्रेसिडेंट था तो ये बेटा इसी वजह से प्रेसिडेंट बन रहा है कि वो उसका एक लिंक है. तो उस वजह से ज्यादा उन्होंने मुझे उसको उस फोर्सफुली उस प्रोसेस से गुजारा और सारा उसमें से ग्राइंडिंग ज्यादा की मेरी. आजकल के बच्चे रगड़े से डरते हैं, वो समझते हैं रगड़ा देने से वो कमजोर पड़ जाएंगे. आपका क्या ख्याल है? देखिए मैं हमेशा हर जगह ये जाके बात करता हूँ, स्पेशली जेन जी हमारी है कि जो फेलियर, आप रगड़े की अगर बात करें ना तो इसमें दो चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं. एक द फेलियर एंड द टफनेस. दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन रगड़ा एंड द ग्राइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है. दिस इज द थिंग. दूसरा ये कि आपका फेलियर, हमारे यहाँ होता क्या है कि हम कोई भी स्टार्टअप लेते हैं, कोई भी कहते हैं अगर हम थोड़ा सा उसमें नुकसान उठा लिया, हम फेल हो गए तो बस पीछे बैठ गए. हालांकि ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी ऑन योर फीट, देन यू कैन गेट इन सक्सेस. आप इतने कामयाब लोगों से मिलते हैं तो क्या ये रगड़े वाले लोग पहले बहुत दफा नाकाम नहीं हुए होते, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से नहीं गुजरे होते? व्हाट डू यू थिंक? बहुत ज्यादा. देखिए आपकी हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है. मैं हमेशा हर जगह जहां भी किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं, बात करूं, मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूं, मैं कहता हूं आप लोग बेशक, और फैकल्टी से खास तौर पे, और मेरा ख्याल है जो आप लोग का सीईओ क्लब ये काम कर रहा है ना, ये उसी लाइंस पे चल रहा है. और आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट कि आप सीईओ ऑफ पाकिस्तान को मिसाल बना के स्टूडेंट्स के सामने लेके आ रहे हैं कि आपके पास जो भी मिसाल दी जाती है स्टीव जॉब की, जेफ बेजल की, सारे बड़े बड़े दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत की, मगर आपको लोकल जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हाईलाइट करने की जरूरत है कि उन्होंने कहां से स्टार्ट किया. क्योंकि आपका जो स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है, उसको वहां से इंटरलिंक करेगा. पाकिस्तान में अगर उसने जीरो से स्टार्ट करके एक मल्टीनेशनल या एक बिलियन कंपनी बना ली है तो व्हाई नॉट आई कैन डू दिस. इसी सिस्टम से वो निकला ना. वो कोई यूएस या यूके में तो नहीं उसने सारा सेटअप किया था. पाकिस्तान में, लाहौर में, मॉडल टाउन में, वहां से उसने स्टार्ट किया. और अब नाउ ही इज ओनिंग अ कंपनी ऑफ सो मेनी पीपल.
So after Rawalpindi Chamber, now you are the chairman for the Rawat sector. You are the chairman for one of the private Industrial state, yeah. industrial state. Yeah. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Nazia, I'm the chairman of management board from last 3 years. That is a Rawat industrial estate. This is the only industrial estate in Pakistan developed and running by the private sector. अब जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहां पे गवर्नमेंट में कोई ना कोई अमल दखल होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपने तमाम उसकी यूटिलिटीज पूरी करनी है, रोड नेटवर्क देना है, और वो एक प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो अपने उस पे सारा एक्सपेंडिचर्स पे। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 550 इंडस्ट्री वहां पे ऑपरेशनल है रवात में। 550। And I tell you, the third largest cluster of pharmaceutical is there after Lahore and Karachi. So it is not a small thing. You are generating a lot, hell of a revenue there, taxes there. So it is not an easy job in Pakistan. एक तो इंडस्ट्री को चलाना, वैसे ही हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाज से कम नहीं है। और फिर उस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल स्टेट को चलाना, कोई वहां पे जो मसले और जहां पे गवर्नमेंट भी आपको साथ ना दे रही हो, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। So you're a voice of 500 plus companies. Yeah, so you're a voice of 500 plus companies employees as well. It is, if you talk about trickle down effect, then I think it's more than 50,000 people. So more than that. So how about running that? It's a very difficult job. I tell you, पाकिस्तान में तो सरकार के साथ आपको कुछ सपोर्ट आ रही हो, कुछ पैसे मिल रहे हो, चलो फिर थोड़ा बहुत होता है। आपने Two major challenges there. लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं हमेशा बात ही करता हूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलाना, मैन्युफैक्चरिंग करना किसी जहाज से कम नहीं है। एक फैक्ट्री वाले को तकरीबन 30 से 40 अदारों से निबड़ना पड़ता है। हर वक्त कोई दरवाजे पे जा रहा है, हर बंदा, कभी वो सोशल सिक्योरिटी वाला जा रहा है, कोई कभी इन्वायरमेंट वाला जा रहा है। आप कैसे चलाएंगे फैक्ट्री? आपको कोई वन विंडो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। आपने एक मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप पाकिस्तान के रेवेन्यू में इनपुट दे रहे हैं, और मसला ये है कि ये वही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, इन्हीं को स्क्वीज की जा रहा है। आपके जो मैक्सिमम लोग टैक्स नेट में नहीं है, टैक्स नहीं दे रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं हर तरह से। ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि उन लोगों को, मजदूरों का पेट भी पाल रहे हैं, जॉब क्रिएशन भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो ही फंस रहे हैं। तो This is the biggest challenge. रवात इंडस्ट्रियल स्टेट का चेयरमैन मानता है कि पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? नहीं है। It's not there. देखिए, हम हमेशा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ चैम्बर एंड ऑन माई पर्सनल कैपेसिटी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि खुदारा वन विंडो ऑपरेशन करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द की फॉर द फ्यूचर। अब SIFC क्या कर रही है? अब थोड़ा सा जो हम बाहर से पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एक अदारा बनाना पड़ा अलहदा उसके लिए कि वो उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करे, ताकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो आए, उनको नजर आए कि हाँ एक इदारा है, हमें वो रेड टेप से मुझसे नहीं गुजरने की जरूरत, यहाँ पे आएंगे, पैसा देंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, चले कुछ थोड़ा बहुत हमें उसमें नजर आ रहा है कि उसमें बेहतरी आ रही है, और उसकी वजह से हमारी थोड़ी सी बाहर से फंडिंग भी आ रही है। हम क्यों नहीं कर सकते अपनी सरकार में? हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी सरकार है, उसको इसमें लेके आए। आई टेल यू वन थिंग, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम व्हाट पॉलिटिकल पार्टी, आई एम a businessman. I know if anyone is doing anything good, then let's promote it. They are doing it. They are trying to create this. इसमें facilitation centers उन्होंने बहुत खोले, ठीक है? That's a good thing कि आप एक जगह पे जाएं, वहां पे आपको हर चीज मिल जाएगी। आपने को अपना सर्टिफिकेट लेना है, कोई आपने लाइसेंसिंग करवानी है, that is good. इस मॉडल पे अगर आपने कंपनी बनानी है, आपने इंडस्ट्री चलानी है, उसको भी इसको नैरो डाउन करना चाहिए। 36 अदारे हैं, खुदारा, इसको खत्म करके आप एक अदारा बनाए जहां पे सारा कुछ हो विदिन, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, विदिन 10 minutes, within 1 hour, within maximum 1 day, go and done. Bas, sure. So now let's not talk about any chamber. Let's not talk about your company. Let's not talk about any industrial state. Let's talk about you. Okay. So define yourself. Do you think that you are an entrepreneur? You are a family person, or how do you define yourself? It is when it comes to Nadeem, it is very difficult. मैं आपको बताऊं Nazia, I usually talk to my wife one thing. Okay. मैं कहता हूं कि I am a very ordinary person, ठीक है ना? I was a backbencher in my school. Oh. I was not a A grade A+ student. आजकल जो बीमारी है ना, ये A grade A+, O level A level. I'm a simple metric. हमने किया ग्रेजुएशन मास्टर्स की, तो I am a very average, shy and very मतलब कम बोलने वाला बच्चा था। तो अब जिस लेवल में मैं अपने आप को देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को जिस तरह ग्रूम किया, उसमें सिर्फ एक
एक चीज थी, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कभी भी ये मत सोचो कि आई कैन नॉट डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू। जब आपने ये सोच अपनी चेंज कर दी ना, जब आपने ये देख लिया, कर लिया कि जी नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो मेरे जैसा बच्चा जो कि बैक बेंचर होता था, नीचे से टॉप करता था और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, स्टेज शाय था, अल्लाह का शुक्र है मैं आपके सामने बैठा हूं। आप मेरा क्यों इंटरव्यू कर रही हैं? मैं पीटीवी पे जाता हूं, मैं लाइव जाता हूं, वहां पे इकोनॉमी पे बात करता हूं, मैं आई एम द पर्सन। 10 बंदे मेरे सामने बैठे थे, मैं नहीं बात कर सकता, सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपने आप को चेंज किया। ये जो चीज है ना अल्लाह ताला ने दी है, इसकी वजह से मशरूफुल मखलूकात है। जिस दिन आपने ये चेंज कर ली, अपनी उसका चेंज कर लिया, आप यू कैन डू मिरेकल्स। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन नदीम। और बहुत 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 मैं बताऊं, आई एम अ फैमिली पर्सन, आई एम अ सोशल बग, ठीक है ना। आई लव टू बी अराउंड माई फ्रेंड्स, आई लव टू बी विद, मैं जहां मूव करता हूं अपनी मिसेस के साथ करता हूं, बेगम के साथ करता हूं। मैं मतलब ये है कि मतलब मेरा वो नहीं हूं कि भी मैं अकेला जाऊं। आई गो टू सोशलाइज ऑन वीकेंड्स, आई गो टू ट्रैवल, आई गो विद माई वाइफ। That's cool. So this is how I am. I love my parents. अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो भी हूं मैं अपनी वालिदैन की दुआओं की वजह से हूं, उनकी मेहनत है जो मैं यहाँ पे बैठा हूं। So This is who I am. this is who I am. Do you miss the old Nadeem? No, I don't, because this is what I want to be, and this is we should be, ठीक है ना। Because आप जिस दिन अपनी सोच को चेंज करोगे, you can do miracles. And I tell you Nazia, I'm 51 at the moment, and there is way to go. मैं अभी भी रुका नहीं हूँ, मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं लगाया। मैं इंशाल्लाह ताला अभी मुझे नहीं पता कैसे, मगर मैं अल्लाह ताला मुझे अभी वो सितारों से आगे जहां और भी है। This is never full stop. How do you kill stress? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कभी भी एक चीज जो थी ना, हमेशा कभी भी मैंने आई लिव ऑन द मोमेंट्स, ठीक है ना। आई डोंट see the past, I don't see my back, I don't see the front. जो आज है वो है। मैं आज शाम को जब मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो मैं 10 दफा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे सेहत दी, तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे अच्छी औलाद दी, मुझे माँ बाप दिए। इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि मेरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन आपने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया अल्लाह का, दिन में 2 दफा 3 दफा सारी दुनिया की चीजें खत्म हो जाएगी। हमारा मसला ये है कि हम सोचते हैं पीछे नहीं था, आगे क्या होगा, ठीक है ना। तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यार मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप इतने लोगों से बेहतर हैं। आप कभी चले जाए हॉस्पिटल, ठीक है ना, आप कभी चले जाए बेचारे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, आप कहेंगे या अल्लाह तूने कितना मुझे करम। जिस दिन शुक्र अदा करना शुरू कर दिया ना, सारे मसले, स्ट्रेस तो चीज ही कोई नहीं है। आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये थी, एंजाइटी, स्ट्रेस, फजूल किस्म की सोचें, सोचना छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो और देखो कि मैं हर काम कर सकता हूँ, फिर देखो अपना जाते हो। All right. Oh, okay. I'm absorbed in your answer actually. Okay. Work-life balance? Yes. I try to balance it because बहुत hectic होती है। I'm the only son, so it's a 2-3 कंपनीज हैं जिनको हम आर्को इंटरनेशनल, जिस तरह मैंने बताया, तो बहुत हमारा दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। माय फादर एस्टैब्लिश्ड इट रिसेंटली। वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ ऑल्सो। एक नई कंपनी बनाई है जिसमें मेरा बड़ा बेटा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज आर्को ईडी ग्लोबल कंसल्टेंट्स। स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंसी पे हम थोड़ा सा काम करने लगे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है लोग बच्चों को बाहर जाने में, इसमें इशू ये आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत सारे फेक काम कर रही हैं और जो प्रॉपर नहीं दे रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस लेवल पे काम किया जाए ताकि अगर कोई सर्विसेज दी जाए तो वाकई ही वो उसको एंड तक अच्छा दिया जाए। सो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन। सो बट वन थिंग दैट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज माय वीकेंड, माय सैटरडे, माय संडे। I enjoy I go to my friends. We go to have a dinner. तो वो मैं अपनी बीवी के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम करते हैं। Two hobbies of Nadeem? Two hobbies of Nadeem. Yes, मतलब मेरा हॉबी यही है कि वैसे तो अब क्रिकेट मैंने बहुत खेली, ठीक है ना, तो मेरा एक पैशन था, शौक था, वो अब छोड़ दिया, अब टाइम नहीं होता। आई डू गो टू जिम, that make me happy and that make me going, ठीक है ना। दूसरा ये कि हाँ, दोस्तों के साथ यारा नाल बहारा, you are मतलब after every 2 minutes or 5 minutes you are going back to your friends. Exactly. Okay, all right. What is success to Nadeem? अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है अल्लाह का बहुत शुक्र है, और जो कुछ मतलब कि मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मैं कर लूंगा। मतलब बेसिक चीज यही है कि आपका जो है, होती क्या है कामयाबी?
देखिए, कामयाबी इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। हर एक के लिए डिफरेंट उसका एक होता है। कईयों को अब मेरे लिए कामयाबी क्या है? मेरे लिए कामयाबी है कि मैं अगर जो कुछ मैंने आज तक सीखा है या जो कुछ मैंने आज तक हासिल किया, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मैं अगर किसी 2 लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊं और वो मेरी बात से आगे चल पड़े, तो मैं आई एम सेटिस्फाइड विद इट। कामयाबी कभी पैसे से नहीं आती, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे पैसे वाले लोग भी जो उनसे ना, वो आप देखेंगे तो वो बुरे हालों में होंगे, बहुत बुरे हालों में। तो कामयाबी मेरे लिए यही है कि टू अचीव समथिंग, ठीक है ना, एंड जो गोल है उसको अचीव करना और उसको आगे स्प्रेड करना कि वो कैसे हासिल किया है और कैसे आपने अपने। और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ग्राउंडेड रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज दी थिंग। मैं एक चीज आपको बताऊं, व्हेन आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पिंडी चैम्बर, द पिंडी चैम्बर इज दैट इज प्रेसिडेंसी इज अ पोस्ट जहां पे आपको बहुत ज्यादा एकदम आप अपने हवा में उड़ जाते हैं, बिकॉज इट्स अ हाई प्रोफाइल पोजीशन। मैंने उस दिन एक फैसला किया था कि 1 साल का टेन्योर है, ये जो 365 दिन है गुजरते पता नहीं लगेगा। मेरा इम्तिहान तब होगा जब मैं उस कुर्सी से हटूंगा। लोग कैसे मुझे याद करते हैं। तो फ्रॉम द डे 1 मैं जितना था, मैं और अपने आप को ग्राउंडेड कर लिया और हम्बल कर लिया, ताकि लोग मुझे बाद में याद करें। सीट पे बैठे तो हर कोई याद करता है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मैं जब पिंडी में किसी मार्केट में जाता हूँ, किसी लोग प्यार करते हैं, तो बात मैं हंसता हूँ, बीवी मेरे साथ होती है, मैं कहता हूँ यार इस दफा मैं इस रेस्टोरेंट में आया ना, 3 लोग आए मेरे पास मिलने के लिए, पिछले 4 आए थे। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं से लोग, मतलब आप लोग मिलते हैं आपसे आके, और फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि ये मैं नहीं था। मैं तो बहुत एक सिंपल बंदा था, आम बंदा था। वो जो आम बंदे वाली कैफियत है ना, वो हर वक्त मैं अपने ऊपर तारी रखता हूँ। What is happiness to you? That is happiness is something spending time with my family? And with my friends. मैं यही कहने लगी थी। Obviously. And I love to travel. उसमें मौका बहुत कम मिलता है। जब मिले तो फिर definitely I try to travel in Pakistan, the north, and कभी-कभी बाहर भी। तो मगर ये कि ट्रैवल मुझे अच्छा लगता है अपनी मिसेस के साथ ट्रैवल करने का और दोस्तों के। पिंडी, इस्लामाबाद में बहुत सारे लड़कों ने आपको स्टेज के ऊपर बोलते हुए सुना होगा। बहुत सारे लड़के आपको बड़ी हसरत भरी नजरों से देखते होंगे, आप जैसा बनना चाहते होंगे। कोई आप जैसा स्पीकर बनना चाहता होगा, कोई आप जैसी पोजीशन लेना चाहता होगा। उन सारे लड़कों को आप उम्मीद का क्या पैगाम देना चाहते हैं? कैमरे में देखेंगे। देखिए, सक्सेस इज, जिस तरह मैंने बात की कि कभी उम्मीद ना छोड़ें। आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, उसको लगे रहें, उसको कॉन्स्टेंटली उसको फॉलो करें, अपने पैशन को, और फेलियर को अपने ऊपर हावी ना होने देखें। इस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आप जब भी कुछ स्टार्टअप लेते हैं, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उसमें मुश्किलात आएंगी, उसमें आपको अपनी फैमिली की तरफ से मुश्किलात आएंगी, आपको अपने सराउंडिंग्स में मुश्किलात आएंगी। जिस दिन आपने हिम्मत हार ली और ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकूंगा, तो आप नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अपनी सोच को मुस्तबित रखना है, पॉजिटिव रखना है, और ये है कि बस स्काई इज द लिमिट। आई टेल यू, अशरफुल मखलूकात को खुदा रा जाके पढ़े कि अशरफुल मखलूकात क्या है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन यू कैन डू मिरेकल्स। थैंक यू सो मच नदीम रऊफ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए नहीं, और आपने हमें पुराने नदीम रऊफ से मिलने का मौका दिया, इसलिए ताकि हमें पता चले कि कैसे एक आम सा बच्चा इस वाले नदीम रऊफ बनने का मरहला तय कर पाया। So that Nazia, it's my honor to be here. Really, I'll always look forward to Ijaz Saab and your organization. I follow you very बहुत ज़्यादा करता हूँ, और मुझे ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और देखूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। I tell you, आप जो कुछ काम कर रहे हैं, it is more important than what other people are doing. This is सदका जारिया, और प्लीज इसको जारी रखें, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेशन की जरूरत है, और जो आपके सक्सेसफुल लोग हैं वो ही बता सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट हैंड नॉलेज कि क्या है दुनिया और किस तरह लेके चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू।